24 प्रभु जी। प्रभु की आवाज चली गई है। और श्लोका नंबर कौन सा है प्रभु जी? ये 24। यस प्रभु। ट्वेंटी फोर्थ तो कर लिया था ना, 25 पर है। 24 हो गया था। हाँ प्रभु जी। Yes, ओम 24 तत् we have done. विष्णाय परमो पदम, ये तो Yes. कर लिया था हमने। Yes, 25th verse. So yesterday that one devotee asked the question also, Prabha Ranjan Mataji. This is the question. The question was this: three words. The three words Om Tat Sat are uttered in conjunction with the holy name of the Supreme Lord. Example: Om Tat Vishnu Ho. Whenever a Vedic hymn or the holy name of Supreme Lord is uttered, Om is added. This is an indication of the Vedic literature. These three words are taken from the Vedic hymns. Om iti etad brahmano nedishtam naam indicates the first goal. तो ये तीन जो वर्ड हैं इसमें ओम जो है that is the first goal, and that is the Nirakarvad, Brahmavad. Om. The word Om means it is an impersonal call of the Lord. So they think that the Lord is impersonal. Lord is some light or energy or some power or some nature. This is the Lord. तो भगवान तो एक शक्ति है, एक एनर्जी, एक लाइट, ब्रह्म है, एफल्जेंस है। वो जो है ओम इति एतद ब्रह्मणो निर्दिष्टम नामा. This is the first goal. Second goal is Om Tat. Tat means Tattvamasi. Tattvamasi means I am not this, I am not this, I am not that, I am not this. ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं. Means that I am not some body. They think all the problems are related to the form. All the problems are related to the body. So I am not this body, I am not this person, I am not this personality. So I am not this, I am not this, I am not this, I am not this. This is called Tattvamasi. And the last one is Om Tat Sat. Sat means and Sat Eva Saumya indicates the third goal. So this Saumya means the Saumya Rupa. So this is the Sat means the eternal transcendental personality of Godhead. This is the form of Lord Krishna in Krishna consciousness which we are practicing. So this is the third goal, the personality of the God. So first is the Brahmavad. Second is the Tattvamasi, I am not this, I am not this. Is denying everything, Naiti Naiti. And the third one is the personality of Godhead, Sadeva Saumya. So these are called Om Tat Sat. तो प्रभा जी ने कल क्वेश्चन पूछा था, तो I just referred Prabhupada literature and I'm giving. This is the definition is there. One question is there. कि Yes. जब ओम जो है वो इम्पर्सनल वो है, तो फिर सत जो है वो दैट इज एक ही सत में निराकारवाद भी है और क्या कहते हैं हाँ, तो ये कृष्ण तीन, का साम्य रूप है. यस, ये तीन गोल्स हैं, तीन मेथड्स हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ को अप्रोच करने के लिए. ओम इज इम्पर्सनल, तत् मीन्स तत्वमसी, सत मीन्स इटर्नल. बोलते हैं ना सच्चिदानंद प्रभा जी, सच्चिदानंद, that sat is the eternal, permanent.
And that is personality is permanent. Personality is not temporary. It is always there. Understand. So that's why it is Sat. Om Tat Sat. तो उसके बाद हम आगे चलते हैं. आगे हम 26th वर्स करेंगे. 25th. तद इति अनभिसंध्याया फलम यज्ञ तप क्रियाः दान क्रिया च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. One should perform sacrifice, penance and charity with the word Tat. The purpose of such transcendental activities is to get free from material entanglement. ऑडियो जो है वो आप म्यूट करके रखिए. सैक्रिफाइस, पेनेंस, चैरिटी तत् के साथ, विद द वर्ड तत् के साथ करना चाहिए. ये सारी ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज जो है ये भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए हैं. सारे मटेरियल एंटेंगलमेंट से बाहर निकलने के लिए है. To be elevated to the spiritual position, one should not act for any material gain. Acts should be performed for the ultimate gain of being transferred to the spiritual kingdom, back home, back to Godhead. तो हमें अगर किसी आध्यात्मिक पोजीशन पे पहुंचना है तो किसी भी भौतिक लाभ के लिए हमें एंडेवर नहीं करना है. हमें अल्टीमेट लाभ के लिए कार्य करना है, उसके लिए चेष्टा करनी है, उसके लिए कार्य करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम जाना है हमको. That should be our endeavor for the whole soul. That is my energy, that is my soul, that is my work. Next, number 26 and 27. Sadbhave sadhu bhave cha sad iti etat prajuyate prashaste karmani tatha sachada partha yujyate yagne tapasi dane cha sthiti sad iti chochyate karma chaiva tad arthyam sad iti eva vidhiyate. Translation and purport by Srila Prabhupada. The absolute truth is the objective of devotional sacrifice, and it is indicated by the word Sat. These works of sacrifice, of penance and of charity, true to the absolute nature, are performed to please the Supreme Person, O son of Pritha. तो जो परम सत्य है वो ही यज्ञ का टारगेट है, यज्ञ का लक्ष्य है, जो कि सत्य वर्ड से वो इंडिकेट किया जा रहा है. ओम तत्सत सच्चिदानंद. तो ये जो यज्ञ के सारे कार्यक्रम हैं, ये जो तपस्या है, दान है, यज्ञ है, ये सारा परम सत्य के स्वभाव में है और भगवान को खुशी देने के लिए किया जा रहा है. अर्जुन. The words prashasate karmani or prescribed duties indicate that there are many activities prescribed in the Vedic literature which are purificatory processes beginning from parental care up to the end of one's life. तो जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं ना, उसमें ये प्रशस्ते कर्मणि बता रहे हैं कि हमारी इतनी एक्टिविटीज हैं जो वैदिक लिटरेचर में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो हमारे को प्यूरिफिकेशन करने के लिए हैं. बिगिनिंग फ्रॉम पेरेंटल केयर up to the end of one's life, such purificatory processes are adopted for the ultimate liberation of the living entity. In all such activities, it is recommended that one should
vibrate Om Tat Sat. The words Sadbhave and Sadhu Bhave indicate the transcendental situation. One who is acting in Krishna consciousness is called Sattva, and one who is fully conscious of activities in Krishna consciousness is called Swarupa. तो ये अल्टीमेट मुक्ति के लिए ये सारे प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस हैं, क्योंकि सारी एक्टिविटीज में ये वर्ड जो है ओम तत्सत, इसको वाइब्रेट करना बहुत जरूरी है। ये भी लिंक जो है ये 10 मिनट में बंद हो जाएगा, इसको दोबारा हम लॉग इन करेंगे और कल से हम एक नया लिंक इसको स्टार्ट करेंगे जिसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Today we have to log in again after 10 minutes. So these words Sadbhave and Sadhu Bhave, एक ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन को रिकमेंड कर रहा है, को इंडिकेट कर रहा है। तो जो कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कर रहा है वो सत्व है, और जो कृष्ण भावना के को की चेतना में, उसकी भावना में जो कार्य कर रहा है वो स्वरूप है, जो उसकी चेतना को समझ रहा है, जो उसकी एक्टिविटीज को समझ रहा है, वो स्वरूप है। In the Srimad Bhagavatam, it is said that the transcendental subject matter becomes clear in the association of the devotees. Without good association, one cannot achieve transcendental knowledge. When initiating a person or offering the sacred thread, one vibrates the words Om Tat Sat. Similarly, in all kinds of yogic performances, the supreme object Om Tat Sat is invoked. These words Om Tat Sat are used to perfect all activities. The supreme Om Tat Sat makes everything complete. तो श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है, जो हमारा दिव्य ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर वो पूरा क्लियर हो जाता है। कब क्लियर होता है वो? कब क्लियर होता है? When it is clear? Anyone? भक्तों की संगति में प्रभु जी। Yes. तो इसलिए हमें ये भक्तों की संगति का अपॉर्चुनिटी देखनी, कैसे कैसे भक्तों का, वैष्णवों का संग मिल जाए, कैसे उनका एसोसिएशन मिल जाए, तो वो लालसा, वो ग्रीड हमें वो क्रिएट करनी, ग्रीडी फॉर दिस एसोसिएशन। प्रभुपाद जी ने इतने बड़े बड़े मार्बल के जो टेम्पल्स बनाए हैं, किस लिए बनाए? Why Prabhupada made big temples? For this association only. प्रभुपाद जी कहते हैं ये साधु संघ जो है ये कहीं कनॉट प्लेस में नहीं सेल हो रहा है। You cannot go and purchase sadhu sangh from Connaught Place. This is available in the temples of Krishna consciousness. So when you visit the temple, you should be eager to associate with the devotees of Krishna. Association का क्या मतलब है? संगत प्रभु जी, साधु संघ, सतम संगत, जो भी सत्य साधु संघ जो होता है। क्योंकि कई लोग क्या है, मंदिर में आके और घर की बातें करते हैं। हमारे बेटे ने वो कर दिया, बेटी ने ये कर दिया, उसका वो हो गया, ये हो गया, सारा वो मंदिर में आके भी सारी वर्ल्डली एक्टिविटीज डिस्कस करते रहते हैं। वो साधु से कभी ये परम लक्ष्य की बात नहीं करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, तो सारा वर्ल्डली एक्टिविटीज बातें करते। दैट इज नॉट साधु संगा। साधु संगा मीन्स द सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑफ द ट्रांसेंडेंस of the spiritual subject matter should be discussed. So that कृष्णा, वो कृष्ण के बारे में बात करनी, कृष्ण के बारे में सोचना, कृष्ण में रहना। Yes. So that is called the sadhu sangha.
Without good association, one cannot achieve transcendental knowledge. क्योंकि हमारा एसोसिएशन ही खराब है. जिन लोगों से हमारा उठना बैठना है, उनका कोई लेना देना नहीं है भक्ति और सेवा से, है ना. That is not good association. That is bad association. In that bad association, you cannot achieve transcendental knowledge. दिव्य ज्ञान नहीं मिलेगा आपको. When initiating a person or offering the sacred thread, one vibrates the words Om Tat Sat. तो दो तरह की दीक्षा होती है. कौन सी दीक्षा होती है? माला जपने की प्रभु जी, 25 माला 64 माला. हाँ, उस दीक्षा को हरिनाम दीक्षा बोला जाता है. जी. हरिनाम दीक्षा में नाम चेंज हो जाता है ना. पर्सन का जो नाम है वो मटेरियलिस्टिक नाम से स्पिरिचुअल नाम हो जाता है. जैसे अभी नोएडा में अपने जो डिवोटी हैं महेश अग्रवाल, उनका हरिनाम दीक्षा हो के नाम क्या हो गया, उनका तो नाम पड़ गया मथुरा चंद्र दास. तो हम जब उनको ऐसे बुलाएंगे मथुरा चंद्र प्रभु जी, तो हमारा भी स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नाम है. मटेरियलिस्टिक नाम बुलाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा. तो लोगों ने सारे अपने बच्चों के नाम में मटेरियलिस्टिक नाम रखे हुए हैं ना. चिल्लू पिल्लू टिल्लू समथिंग दे आर टेलिंग. No benefit of these names. So that's why we had a spiritual names. So first diksha is called the Harinam Diksha. में नेम चेंज हो जाता है. स्पिरिचुअल मास्टर है वो शिष्य को आध्यात्मिक नाम देता है और उस शिष्य का चार्ज ले लेता है. किस बात का चार्ज लेता है वो? प्रभु जी सेवा का, भगवत प्राप्ति के लिए दिन रात उनके निरंतर उनका जप करना, और जो भी मंदिर की, जो भी उसके एसोसिएशन में जो भी कार्य होते हैं उसमें सेवा भाग लेना. प्रभु जी उसकी आध्यात्मिक उन्नति का चार्ज लेता है, उसको भवसागर से पार कराने का चार्ज लेता है. सारी चीजें ठीक बोल रहे हो, एक चीज मिस हो रही है, वो कौन बताएगा? आई विल टेल. अंजलि जी, बहुत अच्छा बोला आप दोनों ने, बट एक चीज मिस हो रही है. अंजलि, जो मिस हो रहा है वो अंजलि जी बताएंगे. प्रभु जी मुझे तो याद नहीं आ रहा वाला. हाँ? प्रभु जी बोलूं, मैं आंसर बोलूं? हाँ, प्रभु जी इसमें ये होता है कि आप अपने साथ साथ और भी लोगों को डिवोटीज बनाइए और इस भवसागर से पार उतरने में उनकी मदद कीजिए, आध्यात्मिक जगत में लगाइए नाम प्रचार करके. तो ठीक है, बट वो चीज जो मिस हो रही है. प्रभु जी ऐसा नहीं जैसे भगवान कहते कि मैं आपके योग क्षेम का भार लेता हूँ, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य के योग क्षेम का भार उठाते हैं. समथिंग एल्स इज दो एक्चुअली इन अदर वर्ड्स है. उन्होंने थोड़ा बता दिया है. इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज दैट? समबडी कैन स्पीक. साधना माता जी. प्रभु जी हमें तो प्योर डिवोशनल सर्विस में जुड़ना है. स्पिरिचुअल मास्टर क्या करता है शिष्य के साथ? व्हाट डू? I couldn't get it, Prabhuji. What did you say? When spiritual master give the initiation to the disciple, so what happens then? What spiritual master do to the disciple? वो प्रभु जी दीक्षा नाम दे देते हैं. तो आपने जो बोला था कि भवसागर से पार दिलाता है, उसको इन अदर वर्ड्स बोला जाता है he frees the disciple from the cycle of birth and death. हरि बोल. ये चीज नहीं आपने किसी ने बोली, क्योंकि हम ये बर्थ एंड डेथ के चक्कर में लगे हुए हैं ना. बर्थ हो गया, फिर डेथ हो गया, बर्थडे मना लिया, फिर डेथ मना लिया. ऐसे हजारों बर्थडेज मना लिए, हजारों डेथ एनिवर्सरी मना लिए. तो स्पिरिचुअल मास्टर इस साइकिल को फुल स्टॉप लगा देता है. स्पिरिचुअल मास्टर इस साइकिल को फुल स्टॉप लगा देता है. मुक्ति का साधन बन जाते हैं. He frees the disciple from the cycle of birth and death, and then you will get a spiritual name.
तो दिस इज फर्स्ट दीक्षा एंड द सेकंड दीक्षा इज कॉल्ड, कौन सी दीक्षा होती है सेकंड दीक्षा? सेकंड दीक्षा को बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा। ब्राह्मण दीक्षा में जो डिसाइपल है वो ब्राह्मण बन जाता है और उसको एक सेक्रेट थ्रेड दिया जाता है, उपवीता दिया जाता है, जिससे वो मंदिर में जाकर पूजा भी कर सकता है, आरती भी कर सकता है ना। दिस इज कॉल्ड ब्राह्मण दीक्षा। उसमें फिर आप